Good morning, students. I'm Rahul Kumar Prajapati, and you are watching SST Paradise Achievers. Today, I'm going to discuss on the topic of natural resource, in which we will study about land, soil, and water. Our first topic is land resource. As you know well, on the earth, 30% land area covers 30% area of the earth, and 70% area is water. So man is using this soil by different ways for growing crops, for building and other purposes. Mano, it means man is using this land. And what is soil? Soil is the mixture of organic and inorganic material. If you talk about organic material, then when the soil is mixed with dead and decaying parts of animals, that is organic. And when the soil is not mixed with plants and animals, that is known as inorganic. In this way, soil is the mixture of organic and inorganic material. As you know well, alluvial soil is found all over India at the large level, and human population is around the alluvial soil, because this soil is very fertile. Where the soil is fertile, the people begin to live. If the soil is not fertile, the man do not want to live at that place. Like desert area, in the desert areas, the population is very less. देखिए लैंड रिसोर्स है क्या. लैंड रिसोर्स 30% एरिया जो है हमारे पृथ्वी का कवर करता है. मानव इस लैंड का यूज कई पर्पज में करता है, चाहे वो पौधों को उगाने के लिए करे, चाहे बिल्डिंग बनाने के लिए या रोड बनाने के लिए. ठीक है. और सॉइल ये है क्या? सॉइल जो है कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों का मिश्रण है. और इस पर और हमारे ऑर्गेनिक में क्या क्या आता है, जिस सॉइल में पेड़ पौधों और जानवरों के अवशेष शामिल होते हैं, वो ऑर्गेनिक मटेरियल होता है. इसके साथ और इनऑर्गेनिक मटेरियल में क्या होगा, जिसमें केवल जो है रॉक्स के जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, वो केवल इसमें शामिल होंगे. ठीक है. और एलुवियल सॉइल हमारे देश में बहुत बड़े पैमाने पर मिलती है और ये बहुत उपजाऊ होती है, और यहाँ पर लोग बसना चाहते हैं, क्योंकि ये लैंड जो है एग्रीकल्चरल रूप से बहुत फर्टाइल होता है. क्योंकि जहाँ पर प्रोडक्शन होगा वहीं ना आबादी बसेगी, और डिजर्ट एरिया में लोग नहीं रहना चाहते. ठीक है. नेक्स्ट, लैंड यूज पैटर्न. व्हाट इज लैंड यूज पैटर्न? डू यू नो मैन इज कल्टिवेटिंग क्रॉप्स फॉर ईटिंग, and man is using this land for building houses, building roads and other purposes. Do you know 57% area is covered by cultivated land in India, and 22% area is under the forest area. This area is not up to the mark. Do you know why? Because this is not up to the mark. It means 33%. The norms is 33% should be under the forest covering area. And if you talk about Japan, this ratio in Japan is 67%. So this is very good for Japan. And if you talk about pasture land, then in Australia there is 56% area is covered, and in UK there is only 46% area is under pasture land. देखिए लैंड यूज पैटर्न क्या मतलब क्या है. लैंड को जो हम विभिन्न प्रकार से यूज करते हैं, यही लैंड यूज पैटर्न में आता है. हम लैंड का यूज कृषि करने में करते हैं, रोड बनाने में करते हैं, बिल्डिंग बनाने में करते हैं, घर बनाने में करते हैं. यानी ये जो यूज है इसी को लैंड यूज पैटर्न कहते हैं. कल्टिवेटेड लैंड भारत में 57% है, फॉरेस्ट एरिया जो है 22% है, लेकिन ये होना चाहिए था 33%. ठीक है. फॉरेस्ट एरिया अगर जापान की बात की जाए तो 67% है. अगर चरागाह वाली भूमि की बात की जाए, जहाँ पर पशुओं को चराने का कार्य किया जाता है, वो ऑस्ट्रेलिया में 56% है, और
यूके में 46% है. ओके, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सॉइल रिसोर्स. डू यू नो man want to reside at the place of fertile land. Do you know where the land is very fertile, the people begin to reside because the production is very high. That's why wants to reside at the side of fertile soil also. And soil is the best resource, as well as it is the shelter of animals like rats, snakes, and soil is also used for making bricks. देखिए, आप क्लास 5 में पढ़े होंगे कि ब्रिक्स मेकिंग प्रोसेस में कि इसी सॉइल से ब्रिक्स बनाया जाता है, और यही सॉइल जो है अगर फर्टिलिटी ज़्यादा जहाँ होती है वहीं मानव बसता है. और इतना ही नहीं, यही सॉइल जो है बहुत सारे जानवरों के लिए घर का कार्य करता है. जैसे सांप हो गया, चूहा हो गया, ये सब मिट्टी के अंदर ही रहते हैं. ठीक है. आवर नेक्स्ट टॉपिक, फैक्टर्स अफेक्टिंग द सॉइल फॉर्मेशन. देन फर्स्ट इज पेरेंट रॉक. Soil is formed by the process of weathering. During the day, sun rays come to the mountain and the molecules of mountain will be expanded during the day. And in the night, temperature is very less. So at night, it will be contract. By this process, the rocks will be broken naturally. और इसी and soil is formed. देखिए, पेरेंट रॉक क्या होता है. पेरेंट रॉक वही रॉक होता है जिससे सॉइल का फॉर्मेशन होता है बाय द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग. दिन के समय सूरज की किरणें इस पर बार बार पड़ती हैं तो ये गर्म होता है, तो इसके मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर जाते हैं. और रात में क्या होता है, रात में ये ठंडा होता है तो इसके मॉलिक्यूल्स जो है एक दूसरे से दूर जाते हैं. इसी प्रोसेस से, ये फैलने और सिकुड़ने से ये रॉक्स ब्रेक होते हैं. ठीक है, तो इसी से मिट्टी का निर्माण होता है. ठीक है. नेक्स्ट, टोपोग्राफी. At the mountain area, the soil is very less, and plateau area soil is better than mountain. But whenever you talk about plain area, the soil is found at a very large level. देखिए, माउंटेन एरिया पर चूँकि स्टीप जो है ढाल होती है, इसलिए वहाँ माउंटेन एरिया पर जो है सॉइल बहुत कम मिलती है. ठीक है. अगर वहीं हम प्लेन एरिया की बात करें तो वहाँ पर बहुत ढेर सी सॉइल मिलती है, क्योंकि जो पर्वतों के द्वारा लाई गई मिट्टी होती है रिवर के माध्यम से वहाँ पर आकर डिपॉजिट होती है. और प्लेट्यू एरिया में भी सॉइल माउंटेन की अपेक्षा ज़्यादा ही होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा सॉइल जो है प्लेन एरिया मिलता है. देखिए, नेक्स्ट टॉपिक इज क्लाइमेट. व्हाट, देखिए, क्लाइमेट आल्सो अफेक्ट सॉइल. इट मीन्स टेम्परेचर एंड रेनफॉल अफेक्ट द सॉइल. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड ड्यूरिंग द डे what is happening. During the day, the sun rays come to the mountain and it will expand, and at night it will contract. By this process, soil is formed. Just like it is happening just like Rajasthan. Okay. Our next topic is vegetation cover. Vegetation cover is also affecting. As you know well, at mountain there are cracks. And do you know the seeds with the force of air, it will go at the mountain area and it will start penetrating inside the mountain. And after that, when it will die, when the plant die, its decomposed part enriches the soil, and it will definitely cut. It will also cut the layer of soil also. By this way, soil is formed. The next point is time. Soil takes thousands of years to form a thin layer of soil. It takes thousands of years to form a thin layer of soil.
And do you know soil maintains food security? If there is no soil, there will not be any type of food security. But top layer is removed by air and human unwise actions. देखिए वेजिटेशन कवर में क्या हो रहा था कि जो सीड्स थी वो माउंटेन के ऊपर जो है वायु के माध्यम से जा रही थी और उसकी जड़ें जो है माउंटेन के दरारों में जो है चली जाती हैं और धीमे धीमे उसमें अंदर जाते हुए जो है रॉक्स को तोड़ देती हैं और रॉक्स को तोड़ने से जो है सॉइल का निर्माण होता है, ठीक है। और जब ये पेड़ पौधे मर जाते हैं तब भी वो सॉइल को जो है फर्टिलिटी देते हैं, ठीक है। तो माउंटेन सॉइल भी बहुत फर्टाइल होती है। और देखिए टाइम की बात कर लें तो सॉइल को एक मिट्टी की एक पतली सी लेयर का निर्माण होने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, 4 वर्ष लग जाते हैं। और सॉइल ही एक ऐसी चीज़ है जो फूड सिक्योरिटी को बल देती है, ठीक है। और मगर जो टॉप लेयर है मिट्टी का वो बहुत उपजाऊ होता है, लेकिन ये लेयर जो है रिमूव हो। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल कंजर्वेशन, सॉइल इज conserved by the process of afforestation. By this process, we can plant a lot of trees. And second one is shelter bed. When we plant a lot of trees in such a way so that the air comes and it will not affect the layer of topmost layer of soil. If there is no checkness, then if there is no check in the way of air, it will definitely affect the topmost layer of soil. But if we plant a lot of trees by this way, then the velocity of air will be stopped. And overgrazing by the animals should be checked, and cutting trees should be checked, and building dams should be checked, and contour plowing should be encouraged, and and rotation of crops should be encouraged. देखिए क्या किया जाना चाहिए सॉइल के निर्माण के लिए, सॉइल के कंजर्व करने के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए इसके लिए हम ढेर सारे पेड़ पौधों को लगा सकते हैं। पेड़ पौधों की जो जड़ें होती हैं बहुत अंदर तक जाती हैं और मिट्टी को बांध के रखती हैं, और ढेर सारे अब शेल्टर बेल्ट भी हम लगा लेंगे तो इससे भी हमारा क्या होगा, जो है वायु, चूँकि अगर ऐसे शेल्टर बेल्ट लगा लेंगे तो बहुत सारी एयर जो है बहुत तेज़ से जो आ रही है उसकी वेग को ये कम कर देता है। तो इससे जो टॉप मोस्ट लेयर जो होती है वो कटेगी नहीं, उसे रोक दिया जाएगा, ठीक है। इसके साथ साथ जो डैम बनाते हैं उसको भी रोक होनी चाहिए। क्यों? अगर डैम बनता है तो बहुत सारे पानी को रोका जाता है, कभी कभी ये पानी ज़्यादा हो जाता है तो आसपास के एरिया को जो है अफेक्ट करता है और टॉप मोस्ट लेयर को भी ख़त्म करता चला जाता है, ठीक है। और कंटूर प्लाइंग को जो है बढ़ाना चाहिए। कंटूर प्लाइंग में क्या होती है, जो पर्वतों के ऊपर खेती की जाती है वो कंटूर प्लाइंग से की जाती है। इसमें क्या करते हैं, तो इसमें बहुत बड़े पैमाने पर जो है इस तरह से मेड़ बनाई जाती है ताकि जब पानी बरसे तो पानी जो है रुक जाए, ठीक है। जब पानी रुकता है तो आसानी से उसमें खेती की जा सकती है, ठीक है। वरना पानी सारा बह जाएगा तो वहाँ पर खेती नहीं हो पाएगी, ठीक है। और रोटेशन ऑफ क्रॉप्स में क्या है, फसलों को बदल के लगाना चाहिए। जैसे 6 महीने कोई और फसल लगाए तो फसल को इसलिए बदल देना चाहिए ताकि एक फसल में लगने वाला जो कीड़ा है वो दूसरे फसल को नुकसान न कर सके, क्योंकि उसको भोजन नहीं मिलेगा उस कीड़े को, तो वो इंसेक्ट जीवित नहीं रह पाएगा, ओके। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज वाटर रिसोर्सेज। वाटर रिसोर्स, एज यू नो वेल, water is found 70% on the earth, but all water is not pure. 97% of total water is unpure. Only 3% of water is pure, in which 0.32% are available in lakes, rivers, and atmosphere. Only 2% is found in ice caps, and 0.68% is found in groundwater. And fresh water is found in the form of rainfall. And we should know about hydrological cycle. Because we are talking about water resources, so we should know about hydrological cycle. Listen, what is hydrological cycle? Hydrological cycle. Suppose that this is sun.
during the day sun rays come to the earth, and suppose that this is river. These rays will be heated the water, and water will be converted into the water vapors. Due to the light weight, it will go to the upper side. This process is called evaporation. After that, water will be condensed. Water will be condensed when the molecules of water will be connected to each other. This process will be called condensation. After that, when the molecules of water is too much heavy that air is not able to hold them, it will go to the downside. This process is called precipitation. तो देखिए ये है क्या, वाटर रिसोर्स जो है बहुत ही कीमती रिसोर्स होता है. वैसे तो 70% भाग पर, पृथ्वी के 70% भाग पर वाटर मिलता है, लेकिन पूरा वाटर प्योर नहीं है. 97% जो वाटर है वो अनप्योर है. केवल 3% वाटर जो है प्योर है, यानी पीने योग्य है. उसमें से 0.3% लैक्स, रिवर्स और एटमॉस्फेयर में है. 2% आइस कैप में है, जैसे सियाचिन ग्लेशियर है. 0.68% ग्राउंड वाटर में है. फ्रेश वाटर जो है रेनफॉल के फॉर्म में मिलता है, जैसे बारिश होती है तो वो वाटर बिल्कुल फ्रेश होता है. इसी के साथ साथ हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्या होता है, जब सूरज की किरणें जो रिवर पर पड़ती हैं तो रिवर का वाटर हीट होता है और ये वाष्प बनकर ऊपर उड़ता है. तो इस प्रोसेस को इवेपोरेशन कहते हैं. और जब वाटर की बूंदें एक दूसरे से मिल जाती हैं तो वो प्रोसेस जो है कंडेंसेशन कहलाता है. और एयर इसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले भी जाता है. और जब ये एक दूसरे से मिल जाते हैं और उसके बाद भारी हो जाते हैं तो धरती पर ये गिर जाते हैं. तो इस प्रोसेस को प्रेसिपिटेशन कहते हैं. ओके, अब देखिए एयर ऑफ हाई रेनफॉल. हाई रेनफॉल इज फाउंड इन द इक्वेटोरियल एरियाज ऑफ साउथ अमेरिका, अफ्रीका एंड साउथ ईस्ट एशिया लाइक माशिनराम. देखिए इक्वेटोरियल एरिया कहाँ से है, 0 डिग्री से 10 डिग्री जो है ऊपर और 0 से 10 डिग्री नीचे. ये जो है एरिया इक्वेटोरियल एरिया कहलाता है. इसमें ढेर सारी बारिश होती है, जैसे अमेरिका हो गई, अफ्रीका हो गया, इसी के साथ एशिया वाला भाग. ठीक है, जैसे मासिनराम में तो बहुत ज़्यादा बारिश होती है. वहाँ पर तो विभिन्न प्रकार के अम्ब्रेलास को यूज करते हैं, जैसे वो नाव के आकार का अम्ब्रेला है. अब इसको आप जो है गूगल पर देख सकते हैं. ठीक है, लो रेनफॉल देखिए कहाँ होती है, इन द ट्रॉपिकल डिजर्ट लाइक सहारा, अरेबियन एंड कराहारी डिजर्ट एंड पोलर रीजन्स, पोलर एरियाज. देखिए ट्रॉपिकल रीजन में मिलता है, जैसे सहारा हो गया, अरेबियन और कलाहारी डिजर्ट वाला एरिया हो गया, पोलर एरिया हो गया. यहाँ पर जो है इस तरह की लो रेनफॉल देखने को मिलती है. नेक्स्ट वन इज पॉल्यूशन ऑफ वाटर. डू यू नो वी आर थ्रोइंग द आवर डोमेस्टिक वेस्ट, वर्शिपिंग वेस्ट इन द गंगा रिवर, एंड अर्बन वेस्ट इज आल्सो थ्रोइंग इन द गंगा रिवर एंड अदर रिवर्स. ऑल सीवर्स आर कनेक्टेड टू द रिवर्स, दैट्स वाई द वाटर इज बीइंग पॉल्यूटेड. देखिए हो क्या रहा है, ढेर सारी वाटर को हम लोग पॉल्यूट कर ही रहे हैं. और इसके साथ साथ क्या कर रहे हैं, सीवर का जो वेस्ट है वो तो गंगा जी में जा रहा है और अन्य नदियों में जा रहा है. ठीक है, और जो है पूजा पाठ की सामग्री होती है तो वो लोग कहते हैं गंगा जी में ही फेंकना है. यही सारी धारणाओं की वजह से हमारी जो है रिवर जो है बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड हो चुकी है. ठीक है, नेक्स्ट इज मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट. इट मीन्स व्हेन वी आर फुलफिलिंग द a lot of objectives, that is called multi-purpose river valley project. Through this multi-purpose river valley project, our government had made a series of dams, and with the help of these dams they are using this water for providing irrigation like afforestation, irrigation, generating electricity, like Hirakund Dam in Odisha on Mahanadi River, and Damodar River Valley Project in West Bengal, and Hoover Valley in USA. इस प्रोजेक्ट के थ्रू, चूँकि इससे बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कहते हैं. क्यों कहते हैं, क्योंकि इससे ढेर सारे उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है. जैसे एफॉरेस्टेशन किया गया, जैसे वनों को लगाने का काम किया जाता है, खेती की जाती है, इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जाती है, और बड़े बड़े डैम्स बनाए जाते हैं. ठीक है, इसीलिए इसको मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट कहते हैं. और जैसे हीराकुंड डैम बनाया गया है उड़ीसा में महानदी पे. दामोदर नदी पर जो है एक वेस्ट जो है पश्चिम बंगाल में है, इस पर डैम बनाया गया है. और हूवर वैली जो है यूएसए में है. इस तरह से ढेर सारे डैम्स बनाए गए हैं. ठीक है, our next topic is ecological problems by building dams. The forest area is submerged and population has been displaced by the act of building dams,
एंड एक्वेटिक लाइफ हैव बीन अफेक्टेड बाय दिस डैम्स। देखिए हुआ क्या है, हमने बहुत सारे एरिया को बहुत सारे नदियों पर डैम बना दिया, तो इससे क्या है कि जो फॉरेस्ट जब पानी को रोका जाएगा तो जाहिर सी बात है वो आसपास के एरिया को अफेक्टेड करेगा। तो बहुत सारे जंगली एरिया जो है पानी में डूब चुके हैं और उसके बगल में जो रहने वाले लोग हैं उनको अब वो स्थान छोड़ करके दूसरे स्थान पर जाकर बसना पड़ा। इतना ही नहीं, जब हम बिजली पैदा करते हैं तो एक टरबाइन मशीन होती है, तो पानी उसी पर गिराया जाता है। अब सोचिए कि उसमें अगर कोई मछली है या कोई जलीय जीव है, जैसे टर्टल है, फ्रॉग है, स्नैल है, वर्म है, तो वो अफेक्ट होगा कि नहीं होगा, वो उसको भी हार्म होती है। ठीक है। नेक्स्ट, वाटर कंजर्वेशन मेथड। हाउ विल वी कंजर्व? बाय प्लांटिंग। इफ़ यू प्लांट ट्रीज it will definitely maintain the balance of water level, and we should save the rainwater, and we should adopt the drip technique. In this technique we can run the pipes in the field, and this pipe will sprinkle the water so that the plant will take maximum amount of water, and water is not going underground way, through which we can save the water. And recycling water should be used for industries. Do you know हो क्या रहा है? देखिए वाटर कैसे कंजर्व कर सकते हैं? ढेर सारे प्लांट लगाकर, क्योंकि पौधे की जड़ें क्या होती हैं, वो पौधे की जड़ें मिट्टी के अंदर तक बहुत जाती हैं और वो पानी को खींचने के लिए उनकी जड़ें बहुत अंदर तक जाती हैं, जिससे वाटर लेवल बैलेंस होता है। ठीक है। जैसे चंदौली में जो है वाटर लेवल बहुत कम हो गया था, तो इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी थी वहाँ के लोगों को। ठीक है। तो क्योंकि हम बहुत सारे पानी जो है पृथ्वी से निकाल ही ले रहे हैं हैंड पंप्स के माध्यम से। अब देखिए ड्रिप टेक्निक के माध्यम से हम जो है खेती कर जो है एग्रीकल्चर कर सकते हैं। इसके माध्यम से जो है पानी का छिड़काव किया जाता है पेड़ पौधों पर, और रिसाइकल वाटर हम यूज कर सकते हैं। और जैसे हम जिस पानी से नहा रहे हैं उस पानी से घर भी धुला जा सकता है। ठीक है। तो इस तरह से हम बहुत सारे टेक्निक्स का यूज करके वाटर को शेप कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही इसेंशियल रिसोर्स है। इसी के साथ यदि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।